Welcome back, NDA aspirants, to the 27th of 40 lectures of the English crash course for NDA by Ma Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember we were continuing with articles. Today is the last day of it. First day we covered indefinite articles and then we covered the definite articles the. Today we are talking about the omission of articles, places where articles are not used or omitted. Omitted मतलब हटा दिया जाता है, वहां से उनको नहीं उपयोग किया जाता है. That is what we are going to do today. If there's anything that you do not know from the previous lectures, please go back and visit them. Come back once you're done through and through with all the previous 25, 26 lectures. Alright. Omission of the article case 1. Omission मतलब removal. Not using something. हटाना, बहिष्कार करना. Before names of substances and abstract nouns. जैसे substances और abstract nouns के नाम पे पहले use नहीं किया जाता है. मतलब uncountable noun के पहले use नहीं किया जाता है. Used in a general sense. When it is used in a general sense. When you're using that uncountable noun in a general sense, as a class, as a category of its own, when you're talking about it as a category, as a class, in a general sense, तब आप उसके पीछे the या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल शुगर इज बैड फॉर योर टीथ. हम कह रहे हैं कि चीनी आपके दांतों के लिए खराब होती है. वह चीनी, यह चीनी, कोई चीनी, एक चीनी नहीं, चीनी, चीनी इन इटसेल्फ. शक्कर आपके लिए दांतों के लिए खराब, शक्कर नहीं, चीनी. शक्कर इज समथिंग एल्स आई थिंक. ऑलराइट, शुगर इज बैड फॉर योर टीथ. तो शुगर. गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. सोना एक मूल्यवान धातु होता है. विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन. ज्ञान, ज्ञान नहीं, सही गलत परख पाने की क्षमता, निर्णय ले पाने की क्षमता, वो एक उपहार है स्वर्ग द्वारा, ऊपर परमात्मा द्वारा. लेट्स से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सत्यवाद सबसे बढ़िया नीति है, सबसे अच्छी नीति है. वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड. अच्छे जो आपके अंदर अगर संस्कार हैं तो वो अपने आप में एक पुरस्कार, अपने आप में एक पुरस्कार है. Virtue is its own reward. But note, example, uncountable nouns take the when qualified. This is an exception. So uncountable nouns take the when qualified by an adjective or an adjectival phrase or clause. अब कोई adjective या adjectival phrase या clause लग रहा है तब हम the लगाएंगे. For example, would you pass me the sugar? Which sugar? The sugar on the table. तो यहाँ पे एक adjectival phrase लग रहा है इसके साथ, on the table. Which sugar? The sugar on the table. This is a preposition, this is a noun, but together this is talking about which sugar, so that is why we are calling it an adjectival phrase. A phrase which is modifying sugar or telling us about the sugar on the table. So here it is understood, we are not writing it, but it is understood. If you say, would you pass me the sugar, we obviously mean which sugar, the sugar that is kept on the table. Will you get me some sugar, will you get me sugar, that means आप चीनी लेके आओ. कौन सी चीनी, कहीं से भी लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, वो अलग बात है. The sugar हमें पता है कि जैसे प्याले में या किसी डब्बे में शुगर पड़ी है, चीनी पड़ी है, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. The wisdom of Solomon is great. Of Solomon, wisdom किसकी? सोलोमोन की. सुलेमान, the first king of Israel. Solomon, considered to be the wisest of kings. So the wisdom of Solomon is great. उसका जो wisdom था वो सबसे महान है. I can't forget the kindness with which he treated me. With which he treated me. This is a clause now. Kindness. मैं नहीं भुला सकता वह kindness, वह दया. With which he treated me. जिसके साथ उसने मेरे साथ पेश आया था, जिस दया से वो मुझसे पेश आया था वो मैं नहीं भूल सकता. जिस अच्छाई से वो मुझसे पेश आया था वो मैं नहीं भुला सकता. So I can't forget the kindness. Kindness now here becomes a particular. The kindness, which kindness? तो यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है the? अब हम particular बना दे रहे हैं उसको, definite बना दे रहे हैं. शुगर हमें पता है कौन सी शुगर, wisdom हमें पता है किसकी wisdom, kindness हमें पता है कौन सी kindness. That is why we are using the. So वही चीज रही है कि the we are using when it is a definite thing, we know which one we are talking about. Otherwise कोई आर्टिकल नहीं लगता, and नहीं लग सकता, शुगर नहीं हो सकता, शुगर क्यूब हो सकता है, पर वहां पे फिर हम मेजर कर रहे हैं क्यूब को, जो एक काउंटेबल नाउन बना देगा उसको. और इफ यू डू नॉट रिमेंबर अबाउट काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, प्लीज गो बैक एंड विजिट द चैप्टर ऑन नाउन्स एंड देन कम बैक वंस यू आर सर्टेन about your knowledge regarding the same. Now, omission of the article case 2. Before plural countable nouns used in a general sense. Before plural countable nouns used in a general sense, we cannot use articles before a plural countable noun used in a general sense. Why? क्योंकि जनरल सेंस में यूज किए जाने वाले काउंटेबल नाउन्स जब सिंगुलर होते हैं तो उसके पीछे अ और एन लगता है, पर अ और एन सिंगुलर के लिए यूज होता है. सिंगुलर के लिए मतलब एक चीज के लिए. वहीं अगर वो प्लूरल हो जाएगा तो अ एन नहीं लग सकता, द भी नहीं लगेगा, क्योंकि जनरल सेंस में यूज हो रहा है, स्पेसिफिक सेंस में यूज नहीं हो रहा है, डेफिनेट सेंस में यूज नहीं हो रहा है. तो इसलिए वहां पे कुछ भी नहीं लगता. जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, की बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है, सभी बच्चों को. अब यहाँ पे द लगा दूंगा, द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, मतलब हमें पता है कौन से बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं.
कि भाई स्कूल के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, घर के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, आस पड़ोस के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं और जगह के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, वहां के बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है, तो क्या लेके जाए उनके लिए, चलो चॉकलेट्स लेकर चलते हैं, बिकॉज द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स। द नहीं लगाए, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स मतलब हर बच्चे को, बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। Computers are used in many office. The computers that are used in my office, अब the computers that are used in my office हो जाएगा कि वह कंप्यूटर्स जो मेरे ऑफिस में यूज किए जा रहे हैं, स्पेसिफाई कर दिया हमने कौन से कंप्यूटर्स, तो द लग जाएगा। यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ सिर्फ कंप्यूटर्स की बात हो रही है कि कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिस, तो वी विल नॉट यूज दैट। नोट, द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट देम विद अ पर्टिकुलर मीनिंग। भाई अगर पर्टिकुलर मीनिंग के साथ हम बात करेंगे तो द लगाएंगे। भाई वेयर आर द चिल्ड्रन, हमें पता है कौन से बच्चों के बारे में बात करेंगे, वो बच्चे कहाँ हैं। आई विश टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स आई ब्रॉट, मेरी इच्छा है वो चॉकलेट्स जो मैं लेके आया हूं उनके बीच में बांटने की, और यहां पे भी द लगा सकते हैं हम। द कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड इन माय ऑफिस, द कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड इन माय ऑफिस आर अप टू डेट, आर अपडेटेड और अप टू डेट। The computers which are used in my office. Now we made it a specific thing. All right. Before most proper nouns, ज्यादातर proper nouns के पीछे the या a नहीं लगता है। Obviously proper nouns आपके हमारे नाम हैं जो, except the ones that we talked about in the previous section. हमने देखा था कुछ oceans होते हैं, mountains होते हैं जैसे, और कुछ countries हैं और rivers हैं, उनके पीछे islands हैं, उनके पीछे the लगता है, पर ज्यादातर proper nouns के पीछे नहीं लगता है, except जो mentioned earlier मतलब पिछले lecture में। So go back and revisit the previous lecture and see which were the proper nouns which had the definite article the before them, namely names of people. अब किसके पीछे नहीं लगता है, लोगों के नाम के पीछे। गोपाल राजू अगर नाम है किसी का तो द गोपाल द राजू नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो बहुत महान ना बन जाए कि द गोपाल ऑफ इंडिया बहुत महान बन गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसके बारे में। नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप जो है, कितने महाद्वीप हैं लिख के बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, कितने महाद्वीप हैं, क्या नाम है उनके। कंट्रीज, सिटीज, कंट्रीज ज्यादातर नहीं, पर भाई द नेदरलैंड्स, द हेग कंट्री नहीं है, वो उसका सीट ऑफ गवर्नमेंट है, सीट ऑफ पावर है। द नेदरलैंड्स, द यूक्रेन, द यूनाइटेड किंगडम्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, वी हैव सीन दीज एक्सेप्शंस। देखो एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अर्लियर मतलब पहले जो स्पष्ट किए गए थे, पिछले लेक्चर में जो स्पष्ट किए गए थे, एक्सेट्रा। लाइक यूरोप, भारत, नागपुर, ऑल ऑफ देम डू नॉट हैव द बिफोर देम। नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन्स, अब जो माउंटेन रेंजेस थी लाइक हिमालयस, उसके पीछे लगता है द हिमालयस, द अरावलीज, द रॉकीज, द एंडीज एक्सेट्रा, द विंध्याचल। बट इंडिविजुअल माउंटेन्स जो हैं उनके नाम के पीछे द नहीं लगता। लाइक माउंट एवरेस्ट है तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होता, सिर्फ माउंट एवरेस्ट होता है। इंडिविजुअल आइलैंड्स के पीछे नहीं लगता है, श्रीलंका के पीछे नहीं लगता, द श्रीलंका नहीं होता, द ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रेलिया। लेक्स के पीछे नहीं लगता है, बाइकाल, द बाइकाल नहीं। हिल्स के पीछे नहीं लगता है, हिल का कोई नाम याद नहीं आ रहा, किसी को याद है तो बताओ भाई, लिख के बताओ मेरे को। अरावलीज हैं शायद। ओमिशंस ऑफ द आर्टिकल्स, तो ये सब के पीछे नहीं लगता है द। नेम्स ऑफ मील्स, आप जो खाना खा रहे हैं सुबह दोपहर शाम का, उसके पीछे नहीं लगता। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, नॉट द लंच। डिनर इज रेडी, खाना तैयार है रात का। पर किसी विशेष लंच के बारे में आप बात करोगे तो द लंच दैट आई हैड एट योर प्लेस वाज वेरी डिलीशियस, कि आपके घर पे जो मैंने उस दिन खाना खाया था दोपहर में वो बहुत प्यारा था। फॉर एग्जाम्पल, नोट, वी यूज अ व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एक्सेट्रा। वी यूज द व्हेन वी स्पेसिफाई। यूज कर सकते हैं अ जब हम एडजेक्टिव लगा रहे हैं उसके पीछे। एडजेक्टिव कैसे, देखो, वी हैड अ लेट लंच टुडे। अब लेट क्या है, एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि लंच कब हुआ था, लेट हुआ था। तो लंच नाउन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है लेट, कि बाद में किया गया था लंच, जिस टाइम पर हम लोग साधारण रूप से करते हैं उस टाइम पर नहीं हुआ था, उस टाइम के बाद किया गया था। सो अ लेट लंच टुडे, आई हैड अ लेट लंच टुडे। The dinner we had at the tourist hotel was very nice. Example, see, now we are specifying the dinner. Which dinner? The dinner that we had at the tourist hotel. It was very nice. Now we are specifying the dinner. हम specify कर रहे हैं कौन सा dinner, इसलिए the लगाया गया वहां पे। Adjective लगाया अगर उसके पीछे तो a लग जाएगा। I had a very hearty breakfast today. A hearty breakfast मतलब बहुत बढ़िया, एकदम full भरा हुआ, अच्छी तरह, full plates. Hearty, I ate it to my heart's content. पेट भर के खाया, so hearty breakfast. कोई भी adjective लगेगा अगर, I had a simple breakfast, I had a hearty breakfast, I had a late breakfast, I had an early breakfast. And लगेगा उसमें, और the breakfast that I had yesterday was very hearty. अब कल के breakfast के बारे में specific बात कर रहा हूँ तो the लग जाएगा. The breakfast that I had yesterday was very hearty. All right. Omission of the article next. Before languages, जो languages के नाम होते हैं जैसे English, पंजाबी, हिंदी etc. उनके पीछे भी द नहीं लगता है. We are studying English, we are not studying the English. If I say the English, उसका मतलब हो गया English people.
तो लोग हैं अंग्रेज लोग, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं। अगर मैंने बोल दिया द पंजाबीज, द पंजाबी, द पंजाबी लैंग्वेज बोलूंगा या तो लैंग्वेज के लिए लगा है द, या द पंजाबीज अगर बोल रहा हूँ तो पंजाब के लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, द पंजाबीज, द पंजाबी पीपल, तो एक एडजेक्टिव बन जाएगा वो वहां पे। तो द वैसे नहीं लगता अगर भाषा के बारे में बात हो रही है। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, वी आर नॉट स्टडीइंग द इंग्लिश। इफ वी स्टडीइंग द इंग्लिश दैट मींस हम अंग्रेज लोगों को पढ़ रहे हैं। दे स्पीक पंजाबी एट होम, दे स्पीक द पंजाबी एट होम, नॉट द पंजाबी, दे स्पीक पंजाबी एट होम। ऑलराइट, केस 6, before school, college, university, church, bed, hospital, prison, when these places are visited or used for their primary purposes. I learned French at school. जब इन जगहों को हम उनके प्राइमरी पर्पस के लिए उपयोग कर रहे हैं, मतलब जिस कारण के लिए वो बनी हैं, जानी जाती हैं, उस चीज के लिए अगर हम उपयोग कर रहे हैं उसका सेंटेंस में, तो द नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, कि मैंने स्कूल में फ्रेंच सीखी, भाई वहां सीखने के लिए ही बनाए स्कूल, तो सीखने की बात हो रही है तो द स्कूल नहीं लिखेंगे। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, संडेज को चर्च जाते हैं, प्रे करने के लिए जाते हैं, तो वी गो टू चर्च ऑन संडेज। ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, अब वो सो रहा है बेड में, बेड बना भी सोने के लिए, तो द बेड नहीं लगाया है। माय अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, स्टिल इन हॉस्पिटल में भी भर्ती है वो। अगर हम ये कहते हैं माय अंकल इज स्टिल इन द हॉस्पिटल, इसका मतलब हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भी वो है, थोड़ी देर में आने वाले हैं। किसी और काम के लिए भी हो सकता है गए हों, मतलब डॉक्टर हो सकते हैं वहां पे, या किसी पेशेंट को देखने गए हों, या कोई और मेडिकल ऑफिसर हो, कुछ भी हो सकता है। सो माय अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, दैट मींस वहां पे भर्ती है वो, अगर द नहीं लगा है तो। द लगा होगा तो मतलब किसी और कारणवश वहां पे वो गए हुए हैं। नोट, द इज यूज्ड विद दीज व्हेन वी रेफर टू देम एज अ डेफिनेट प्लेस, बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट रादर देन टू द नॉर्मल एक्टिविटी दैट गोज ऑन देयर। अब अगर इसी जगह की हम सिर्फ उसके स्थान की बात कर रहे हैं, उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उस डेफिनेट प्लेस की बात कर रहे हैं, उस एक स्थान की बात कर रहे हैं, उसके नॉर्मल यूज के लिए नहीं, या उसके नॉर्मल एक्टिविटी के लिए नहीं, तब हम द लगाएंगे। देखो कैसे, द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, द स्कूल इज वेरी नियर। अब यहाँ पे हम स्कूल की पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे, स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बात करें कि उसकी बिल्डिंग मेरे घर की बिल्डिंग के बहुत पास है, मेरे घर से पास है। सो द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, इज नियर माई होम। स्कूल इज वेरी नियर माई होम इज ऑल्सो करेक्ट, नियर माई होम। आई मेट हिम एट द चर्च, अब वहां पे मिला, मैं चर्च पे मिला उसको। आई मेट हिम एट चर्च, आई मेट हिम एट चर्च मतलब मैं प्रार्थना करते करते मिला उससे, और आई मेट हिम एट द चर्च मतलब मैं चर्च पे मिला। जरूरी नहीं है कि हम दोनों उस वक्त प्रार्थना कर रहे थे या प्रार्थना करने आए थे, बस चर्च में हम लोग मिले थे। द बेड इज ब्रोकन, अब बेड यहाँ पे टूटने की बात कर रहे हैं उसकी बेड की, तो द बेड इज ब्रोकन। यहाँ पे हम सोने की बात नहीं कर रहे हैं बेड में, द बेड इज ब्रोकन। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल सी माई अंकल मतलब मैं हॉस्पिटल गया था, मेमोरीज नहीं था। आई वेंट टू हॉस्पिटल मतलब मैं भर्ती हुआ, आई वेंट टू द हॉस्पिटल मतलब मैं हॉस्पिटल गया टू सी माई अंकल। मैं बाहर हूं, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, अंकल भर्ती है वहां पे। Alright, omission of the article case 7 before names of relations like father, mother, aunt, uncle, इनके पीछे नहीं लगता, you don't say the father. The father अगर आप कहोगे तो हम गॉड की बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, या किसी पोप, किसी और फादर जो भी, the person who is in the church and is taking care of that place, the priest, the prime priest, the head priest, that person might be called the father of the church. But अपने पिता और माता और आंट अंकल की अगर आप बात कर रहे हैं तो you won't put the. And also cook and nurse, कुक और नर्स के साथ भी द नहीं लगाते हैं अगर आप अपने कुक और नर्स की बात कर रहे हो। अगर आपका कुक और नर्स है तो आप कुक और नर्स के साथ द नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लगा भी दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। द तो गलत हो जाएगा फादर और आंट के साथ। फादर हैज रिटर्न मतलब पिताजी वापस आ गए, आंट वांट्स टू सी हर मतलब आंटी उसको मिलना चाह रही है। आंट कौन होती है? सारी फीमेल रिलेशन इन द प्रीवियस जनरेशन, आपके माता पिता के साथ के जितने भी उनकी बहनें हैं या उनके भाइयों की वाइफ्स हैं वो सारी आंट है। आपकी मम्मी की तरफ की सारी बहनें, उनकी सारी कजन्स, आपकी मम्मी की तरफ के सारे भाइयों और उनके कजन्स की वाइफ्स आंट्स, पापा की तरफ की सारी बहनें और पापा की तरफ के भाइयों की सारी वाइफ्स, सारे कजन्स और उनकी भी वाइफ्स फीमेल्स जो है वो आंट्स है, और अंकल सारे मेल हो गए। तो आंट वांट्स टू सी, कुक हैज गिवन नोटिस, कुक हैज गिवन नोटिस मतलब कुक ने नोटिस दे दिया कि वो अब नहीं आएगा खाना पकाने, नहीं मजा आ रहा उसको, बहुत सारे लोगों के लिए खाना पकाना पड़ रहा है, पगार उसको पर्याप्त नहीं मिल रही है, अब वो जाएगा और ब्रूस वेन के लिए काम करेगा। इस कुक का नाम था एल्फ्रेड। Anywho, omission of the article case 7 before names of relations like father, mother, aunt, uncle. We already done this. Now we got case 8 before predicative nouns denoting a unique position, that is a position that is normally held at one point by one person only. अगर कोई ऐसे बिफोर प्रेडिकेटिव नाउन्स डिनोटिंग अ यूनिक पोजीशन, अगर कोई प्रेडिकेटिव नाउन है जो यूनिक पोजीशन डिनोट कर रहा है, मतलब एक ऐसी पोजीशन दैट इज नॉर्मली हेल्ड एट वन टाइम बाय वन पर्सन, की ऐसी पोजीशन है जो एक बार में एक ही व्यक्ति द्वारा होल्ड की जा सकती है, उसके पीछे भी हम लोग द या एन नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड,
Now there is only one chairman of the board and only one person can be elected as the chairman of the board. He was elected chairman of the board. You don't have to use the there. Mr. Banerjee became principal of the college in 1995. Again, principal also, one position can be held by one person at one time. So he became principal. Now when we talk about the principal, we can say the principal. The principal has come to give a speech. But when we're talking about the election to that post, then we will say, we're going to use the word the. Alright. Now we got case 9. In certain phrases consisting of a transitive verb followed by its object. अब कुछ phrases में जो transitive verb है उसके बाद जो उसका object followed by its object उसमें नहीं लगता है. For example, to catch fire. To catch fire. क्या catch कर रहे हैं? Fire. Certain phrases consisting of a transitive verb. Catch is a transitive verb here. Take, give, all of these followed by its object is also followed by a object. To catch fire मतलब आग पकड़ लेना. To take breath सांस लेना. To give battle लड़ना. To cast anchor स्थापित होना, स्थित होना, स्थायी होना. जो ship होती है वो एक anchor ऐसा बहुत बड़ा लोहे का एक पूरा आपने देखा होगा, ये इसको फेंकती है शिप ऊपर से और ये चेन से बंधा होता है. इसको शिप ऊपर से फेंकती है ताकि नीचे जाके वो समुद्र के तट पर जाके रुक जाए और शिप स्थायी रह जाए, इधर उधर ना हिले. तो जहां शैलो वाटर्स होते हैं देयर दे कैन कास्ट एंकर. दैट इज व्हाट इट इज, टू मेक इट स्टेबल, टू मेक द शिप स्टेबल. So to cast anchor is to settle down somewhere, to make yourself stable, to make yourself stationary. To send word मतलब खबर भेजना. To bring word खबर लाना. To give ear सुनना. To lay siege हमला करना किसी जगह पर. To set sail प्रारंभ करना जर्नी को. To lose heart हार मानना. To set foot प्रारंभ करना यहाँ पे भी जर्नी को. To leave home घर छोड़ना. To strike root. To strike root मतलब किसी चीज को जड़ को पकड़ लेना और किसी चीज को समझ जाना. To take offense बुरा मान लेना किसी बात का. Alright, so these are the phrases which did not have the, it won't be to strike the root etc. And in certain phrases consisting of a preposition followed by its object. यहाँ पे एक और चीज हम देख रहे हैं कि preposition भी objects लेते हैं like verbs. तो parts of speech में दो parts of speech होती हैं, verbs and prepositions that take objects. Both of them take objects. They are followed by a noun or a pronoun, and that is what the object of the preposition of the verb is. So यहाँ preposition है at home, not at the home. In hand salary. In debt कर्ज में. By day दिन रहते. By night रहते. At daybreak सूरज उगते ही. At sunrise same thing. At noon दोपहर में. At sunset संध्या काल में. At night रात में. At anchor भाई anchor I told you, casting anchor. So if something is at anchor, that means they are stationary, stable. The ship is at anchor, that means the ship is standing. The ship is parked. Like you park a car, you anchor a ship. That is how it is. Alright. At sight, दिखते ही. On demand, demand पर, मांग पर. At interest, so they have given loan at interest of whatever. They've given a loan of 1 crore rupees at an interest of 10% per annum. So at an interest, add interest, add interest. और एड इंटरेस्ट दैट मीन्स कोई चीज पसंद आने पर करना. दैट इज द वन दैट इज हियर. ही डिड इट एट इंटरेस्ट ऑफ समवन एल्स. बाय लैंड जमीन द्वारा कि वी वेंट बाय लैंड, बाय वाटर बाय लैंड, बाय एयर, बाय वाटर, बाय रिवर, बाय ट्रेन द्वारा, बाय स्टीमर इज अ लाइक अ टाइटैनिक, अ शिप दैट रन्स ऑन स्टीम. बाय नेम, ही कॉल्ड यू बाय नेम, ही आस्क्ड फॉर यू बाय नेम, आपका नाम लेकर पूछा उसने. ऑन हॉर्स बैक घोड़े के पीठ पर घुड़सवार होके. ऑन फुट पैदल. ऑन डेक मतलब शिप पर हैं. दे आर ऑन डेक मतलब वो आ चुके हैं. दैट इज व्हाट इट मींस. स्टार्ट्स अगेन विद द शिप. कैन बी यूज्ड फॉर जनरल पार्लेंस एज वेल नाउ. इन जेस्ट मजाक में. एट डिनर पर. एट ईज आराम से. अंडरग्राउंड ग्राउंड के नीचे. अबव ग्राउंड जमीन के ऊपर. So these are all the omission cases of the article. That was that with articles. Now we're done with articles. We revised a few things as well. We're going to continue further into grammar henceforth. For today's question paper 2016 ka second paper we are on right now. We'll start with the first 25 to 30 questions for this session. Let's start with spotting errors. My friend was habitual to drive a car at very high speed. So habitual to के साथ, was habitual to के साथ ing form लगेगा. Habitual to driving a car or was used to. Habitual की जगह क्या लगा सकते हो आप? Used to. दोनों. Habitual to or used to. Was used to driving a car. Was habitual to driving a car at very high speed. So B is the option here. Being a day of national mourning, the offices were closed and the national flag flew half mast. Now being a day of national mourning,
and after that there is a comma here as well. Being a day of national mourning, this is starting with a present participle. That being a day of national mourning, that means the subject of the second part of the sentence is considered to be the subject of the first part as well. अब यहाँ पे सब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो, अगर यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, उसी का सब्जेक्ट हम लोग पहले पार्ट का सब्जेक्ट मानेंगे. अब देखेंगे द ऑफिस बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, नहीं गलत है. ऑफिस थोड़ी ना है डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. यहाँ पे हमें एक सब्जेक्ट दूसरा लगाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, इट, एन एम्प्टी सब्जेक्ट. दैट इट बीइंग अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, कि वह दिन जो था वो एक नेशनल मॉर्निंग का दिन था. द ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड द नेशनल फ्लैग फ्लू हाफ मास्ट. सो ए इज वेयर इट इज. ये जब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे, एडवांस्ड वर्ब्स करेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, पर साथ साथ में अभी भी हम लोग स्नीक पीक लिख रहे हैं ताकि थोड़ा प्राइम होते रहे हम, थोड़ा हमें आदत पड़ती रहे, थोड़े रवा होते रहे हम उसकी तरफ, और जब वो फाइनली आए तो हमें ऑलरेडी कुछ आइडिया हो उसके बारे में और अच्छी तरह से समझ पाए हम उसको. Now if you are wanting to watch, no not wanting, we have done this in present continuous, please go and revisit the present continuous वाला chapter. You are wanting नहीं होगा, if you want होगा. If you want to watch the birds nesting, you must not let them see you. So want जो है वो ing form में use नहीं होता है इस तरह से. He is wanting of something, that means कि उसके अंदर कमी है किसी चीज की, उसके पास कमी है किसी चीज की, वहां पे यूज होता है wanting, उसका मतलब बदल जाता है. You are wanting of good manners, इसका मतलब आपके अंदर कमी है अच्छे मैनर्स की. He does not listen to what I say, although I am advising him for a long time. No, for a long time अगर यूज हुआ है तो perfect continuous के साथ यूज होगा. We've already done this. I have advised, या तो perfect या perfect continuous के साथ. तो I have been advising. Have been advising. I am advising him right now. I am advising him for a long time. Incorrect. I am advising is continuous present. Continuous present के साथ आप for a long time नहीं कह सकते. करता आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ for a long time. That is what it is. It is most essential for us. Most essential नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है यहाँ पे. Most essential for us to reach the station before noun, lest we should miss the train. It is essential for us. The most essential of. The most essential of our needs right now is to reach the station before noon, lest we should miss the train. वैसे कह सकते हैं हम most essential. That the most essential of our needs. The most essential of our needs. Of all the essential needs, the most essential is the one that we should reach the station before noon, lest we should miss the train. That is the way that you can use it. Otherwise, you cannot use it here. Essential के साथ आप superlative ऐसे use नहीं करोगे. I asked him what had brought him there. Correct. This is absolutely correct. There is no mistake here. 6D. I asked him what had brought him here. The guards dare not to harm him. अभी modals में हमने किया है. Dared not to harm him होता तो ठीक था. The guards dare not harm him. यहाँ पे dare not है, इसका मतलब ये modal की तरह यूज हुआ है. modal की तरह यूज हुआ तो मेन वर्ब लगेगा. मेन वर्ब इन्फिनेटिव का नहीं होगा. अगर ये मेन वर्ब बना दे हम, the guards did not dare to harm, तब लगेगा to harm him. तो did not dare होता तब हो जाता, पर dare not है तो to harm नहीं होगा, dare not harm him होगा. See, अच्छा आप ये कह सकते हो कि अब यार इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर, भाई ये पहले आया, ये पहले आया तो उसको सही माना हमने, ये ऑलरेडी सही है, इसके हिसाब से फिर हम दूसरा चेंज करेंगे, पहले वाला चेंज नहीं करेंगे. तो इस तरह से हम उसको आगे लेके जाएंगे. सी को ऑप्शन मार्क करेंगे, बी को ऑप्शन मार्क नहीं करेंगे. अच्छा सी को टू हार्म हिम रख सकते थे और ये चेंज कर सकते थे. द गार्ड्स डिड नॉट डेयर टू हार्म हिम, पर मीनिंग भी बदल जाएगा और साथ में यही है कि डेयर नॉट अपने आप में गलत नहीं है, ये इसके साथ यूज नहीं हो सकता. तो डेयर नॉट पहले आया था, इसको हम सही मान के आगे बढ़ेंगे और फिर इसको सही करेंगे. दैट इज व्हाट इट इज. The principal looks very worried because students are on strike again for the last 15 years. जैसे पहले हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे भी are on strike नहीं होगा, have been on strike होगा. Have been on strike. The perfect tense, not are on strike. You can't use the simple present. It is using the simple present with are as the main verb. You have to use been as the main verb and have as the perfect present का auxiliary. Have been on strike. Have been striking होता तो वो perfect continuous बन जाता. बट ऑन स्ट्राइक यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आया है फिर, तो हैव बीन ऑन स्ट्राइक इज द परफेक्ट प्रेजेंट. बीन इज द मेन वर्ब देयर. द किंग वाज एम्बैरेस्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन. नहीं, एविडेंसेस प्लूरल में यूज नहीं हो सकता. वी हैव डन दिस ऑलरेडी इन द नाउन्स चैप्टर. गो बैक एंड रिविजिट. द किंग वाज एम्बैरेस्ड टू फाइंड एविडेंस अगेंस्ट हिज ओन क्वीन. सो 9th बी. Find evidences against. As I prefer coffee to tea और over, not than. Prefer के साथ than नहीं लगता है, to लगता है, over लगता है. So as I prefer coffee to tea or as I prefer coffee over tea, my friends always take the trouble, not than.
यू कैन से मोर प्रेफरेबल देन, बट देन मोर हो जाएगा, वो कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है, प्रिफर्ड के साथ टू या ओवर लगेगा. यू हैव डन दिस ऑलरेडी, प्लीज गो एंड रिविजिट दोस चैप्टर्स वेयर वी डिड दैट. ऑलराइट, यू डू सिनोनिम्स. Hospitality is a virtue for which the natives of the East in general are highly admired. Hospitality मतलब मेहमान नवाजी, generosity shown to guests. मेहमानों के प्रति दिखाई गई दया या दिखाया गया अच्छा सलूक. सद्भाव, सद्भाव, आपके अतिथियों के प्रति प्रदर्शित सद्भाव, hospitality. House rent in cities like Mumbai or Delhi has risen to astronomical figures. Astronomical मतलब very huge, exorbitant, बहुत ज़्यादा, beyond the reach of even high salaried people. So यहाँ पे astronomical, exorbitant से मतलब है, planetary से मतलब नहीं है. Astronomical figures मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा high, exorbitant, exorbitant amount. Both of them mean the same thing. Appropriate technology. Appropriate मतलब suitable. यहाँ पे suitable best है. Appropriate technology holds the key to a nation's development. Suitable technology holds the key to a nation's development. Appropriate, suitable. He was enamored of his own golden voice. Enamored means खुद ही प्यार होना, मतलब enamored मतलब प्यार में होना. Amor, amor is the word that it comes from, which I think in Latin meant love. So very fond of, कि उसको अपनी ही आवाज से, अपनी golden voice से, अपनी सुनहरी आवाज से उसको खुद ही बहुत प्यार है. अपने ही आवाज से उसको प्यार है, अपने आप को सुनने में बड़ा मजा आता है उसको, इसलिए इतना बोलता है. शायद बहुत मजा आता है अपने आप को सुनने में. बताओ भाई किस किस को मजा आता है अपने आप को सुनने में, अपनी अपनी आवाज से किस किस को प्यार है, बताओ एक बार जरा कमेंट सेक्शन में मुझे. Some journalists are guilty of indulging in yellow journalism. So yellow journalism is to write sensational reports, to write something which is false but sensational, not necessarily false but sensational, मतलब तड़कती भड़कती हुई न्यूज, कंट्रोवर्शियल, जो कंट्रोवर्सी लेकर आए, तो येलो जर्नलिज्म है कि आप सेंसेशनल न्यूज डाल रहे हो कि ज्यादा रेलेवेंट नहीं है वो लोगों से, बट बिकॉज इट इज सेंसेशनल and controversial, people like reading about it, and that is why you're putting it there just to sell your magazines or newspapers or whatever it is. All right, so antonyms. The culprit was sentenced by the court. Sentenced यहाँ पे मतलब हो गया, he was given punishment, he was given a consequence by the court, he was considered to be guilty and he was given a consequence. The opposite of this is acquitted. Acquitted मतलब बाइज्जत बरी, बरी कर देना उसको कि आप सही, आपने गलती नहीं की है, आप बेगुनाह हैं, निर्दोष हैं आप, आपको जाने दिया जाता है. Thrifty as he can well afford to live within his means. Thrifty कम पैसा खर्च करने वाला, ऑपोजिट एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट शूशा, बहुत बढ़िया पैसा खर्च करने वाला एकदम. डू नॉट गिव हिम अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, ही इज इमैच्योर. इमैच्योर मतलब आप समझते ही होंगे भाई, इमैच्योर मतलब जो नहीं है, समझदार और नहीं कर पाता है काम. सीजन्ड, सीजन्ड यहाँ पे देखो, सीजन्ड वेटरन कहते हैं. सीजन्ड मतलब ये बिल्कुल पका हुआ, उसने घाट घाट का पानी पिया और बहुत कुछ सीखा रखा है उसने. आई वॉज प्रिपेयर टू शो माई हैंड. टू शो माई हैंड ये गैम्बलिंग से आता है. टू शो माई हैंड मतलब रिवील करना, अपने प्लान्स जो है दिखा देना, अपना हैंड दिखा देना कि आपने छुपा के रखे हैं पत्ते. नो शो योर हैंड. सो शो, टू शो योर हैंड, व्हाट कार्ड्स डू यू हैव, आर यू गोइंग टू विन और नॉट. तो ऑपोजिट वुड बी टू कंसील. टू कंसील माय प्लान, कंसील हो गया छुपाना, कंसील माय प्लान. टू शो माय हैंड, ऑपोजिट टू कंसील माय प्लान. 20th now. Akbar the Great was a sagacious ruler. Akbar the Great was a sagacious ruler. Sagacious means very wise, prudent, very wise, prudent, intelligent. So unwise is the opposite here. Unwise. 20. Unwise. Selecting words. Alright. Now we'll move on to selecting words. Let's see. She has been lying in bed for the last fortnight. I hope she will pull through. So you pull through. Pull through means you get out of something successfully. That you are able to pull yourself out from a sticky situation, a bad situation successfully. That is what it means to pull through. To pull through, to cross a troublesome time and come out fine at on the other side. The path of progress is beset with difficulties. Beset मतलब जड़ा हुआ है. So progress का जो path है, कामयाबी की जो राह है, वो जड़ी हुई है किससे? परेशानियों से. Beset with difficulties. You beset something with something. So the crown is beset with diamonds. That can also be said. I feel dash for those who are cruel to their children. I feel contempt. Contempt मतलब नफरत. तो जो अपने बच्चों के साथ क्रूअल्टी की तरह पेश आते हैं, अपने बच्चों के प्रति जो क्रूरता दिखाते हैं, I feel contempt for those. Contempt मतलब घृणा. Both the parties were keen to have a dash, and. तो या तो inimical होगा, या inevitable होगा, या amicable होगा. Amicable is friendly, and amicable settlement for the dispute. That is what we're talking about. Amicable. 24th, amicable, friendly.
they got, I have come to know that the two brothers have fallen out. Fallen out मतलब दोनों बिछड़ गए एक दूसरे से, estranged. That the two brothers are estranged or have fallen out. So 25th B is fallen out. Sorry, 25th is B, fallen out. Everybody finds his own work dash, whereas he feels that others have delightful jobs. Own work tedious. Own work tedious. Tedious is boring and very heavy and very monotonous, and something that is hard and boring. Tedious. So everybody finds his own work tedious, where he feels that others have a delightful job. Everybody feels like my work, because they get bored, right? They're doing the same thing again and again, but probably they don't love it. They're doing it for some other reason. They think that we need to do it for something. That is what the problem with most of the people are. They forget how to live. You're not living, you're just alive. Make sure that you're enjoying living. You're enjoying what you do. Do what you enjoy. It's not just a cliched statement. It's a very important thing to understand and feel. The accident took place because of the criminal dash negligence. Criminal negligence होता है. Criminal negligence मतलब आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी लापरवाही. लापरवाही जो क्रिमिनल के स्तर पे मानी जाती है. लापरवाही जिसको क्राइम माना जाता है कि भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है और आपने फिर भी गाड़ी चला रहे हैं आप, और एक्सीडेंट हो गया, तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस बोला जाएगा उसको, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से, आपके पास लाइसेंस नहीं था, आपने नहीं सीखा था, लाइसेंस नहीं था, उसकी वजह से ये हुआ है, तो दैट विल बी अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस केस. The belief in the dash of vaccination is gaining ground. The belief in the efficacy. The belief in the efficacy of the vaccination is gaining. Efficacy मतलब उसकी efficiency, उसकी use, उसका फायदा, उसका efficiency, उसकी योग्यता, उसकी सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य. तो उसके वैक्सीनेशन का जो सामर्थ्य है, उसमें जो भरोसा है, वो ग्राउंड गेन कर रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है. It is gaining ground. That means it is capturing more people, capturing more ground. It is becoming better. It is becoming more. The efficacy. 28th, efficacy. Our new leader is a dash young man, will take us forward. Dynamic young man. You use dynamic साथ में. Dynamic young man. Dynamic मतलब very active, very versatile. You can also use versatile here. Versatile होता तो versatile मतलब very adjustable, very resourceful, बहुत जुगाड़ू, कोई भी काम आए कर लेता है, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर लेता है. वेरी डायनामिक, नॉट स्टैटिक, बैठा हुआ ठस लुर धर नहीं है, हिलता रहता है हमेशा. देयर इज ऑलवेज एनर्जी, देयर इज ऑलवेज dynamism, there's always motion. So that is what it is. Baki doesn't make sense. They found a world of dash between what he said and what he did. A world of difference. There's a world of difference. World of difference between what he said, what he did. World of difference मतलब उनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है. किस चीज में? जो वो कहता है और जो वो करता है. जो वो करता है और जो वो कहता है, उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है. There is a world of difference. That was that for today's lecture. I will see you in the next one.